बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद सईद है। आज हम खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर की 10th क्लास की इंग्लिश टेक्स्ट बुक का यूनिट 6, जिसका नाम है इन स्पाइट ऑफ वॉर, की एक्सरसाइज और पैराफ्रेज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें यह SLO बेस्ड एक्सरसाइज है। चले बढ़ते हैं पैराफ्रेज की तरफ। इन स्पाइट ऑफ वॉर, इसको लिखा है एंजेला मॉर्गन ने। इन स्पाइट ऑफ वॉर, इन स्पाइट ऑफ डेथ, इन स्पाइट ऑफ ऑल men sufferings, something within me laughs and sings, and I must praise with all my breath. इसका पैराफ्रेज देख लेते हैं इस फर्स्ट स्टैंजे का। डिस्पाइट द praises of war and death and all the suffering endured by humanity, there is a sense of joy and celebration within me that compels me to express praise wholeheartedly. Next stanza देख लेते हैं। In spite of war, in spite of hate, lilacs are blooming at my gate. Tulips are tripping down the path. In spite of war, in spite of wrath. Paraphrase देख लेते हैं सेकंड स्टैंजा का। Even with war raging and hatred prevailing, flowers like lilacs and tulips continue to bloom near my home, unaffected by the turmoil and anger. Third stanza है। Courage the morning glory saith, rejoice the daisy murmureth, and just to live is so divine when fancies lift their eyes to mine. पैराफ्रेज देख लेते हैं थर्ड स्टेंजा का। द मॉर्निंग ग्लोरी encourages bravery, while the daisy suggests finding joy in life. Just the act of living feels divine, especially when I see pansies looking at me. थर्ड स्टेंजा देख लेते हैं। The clouds are romping with the sea, and the flashing waves call back to me that not is real, but what is fair, that everywhere and everywhere a glory liveth through despair. इसका पैराफ्रेज देख लेते हैं। The playful interaction of clouds and sea reminds me that only beauty is truly real, and that there's glory to be found everywhere, even amid despair. Fifth stanza है। Though guns may roar and cannon boom, roses are born and gardens bloom, my spirit still may light its flame, all that same torch whence poppies came. Fifth का paraphrase देख लेते हैं। Despite the noises of guns and cannons, roses still bloom and gardens thrive. My spirit can find inspiration from the same source that gave rise to poppies. Next है। Where morning altar whitely burns, lilies may lift their silver urns, in spite of war, in spite of shame. Paraphrase है इसका। Even a war and shame loom large, there's still beauty and grace to found, like lilies lifting their elegant urns. Last stanza है इस poem का। And in my ear a whispering breathe, wake from the nightmare, look and see that life is not but ecstasy, in spite of war, in spite of death. Paraphrase इसका। I hear a gentle voice urging me to waken from the nightmare of war, reminding me that life is filled with joy and ecstasy, regardless of the presence of conflict and death. चले बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले है comprehension. Answer the following questions. फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है, what are the things that thrive despite the ravages of war? यानी वो कौन सी चीजें हैं जो जंग की तबाहकारियों के बावजूद परवान चढ़ती हैं। तो आंसर है फ्लावर्स लाइक लिलिक्स, ट्यूलिप्स एंड
roses thrive despite the ravages of war, as mentioned in the poem. Second question है what are some of the different words and images used in the poem that convey the emotion of loss? यानी इस पोएम में वो कौन से मुख्तलिफ अल्फाज या इमेजेस इस्तेमाल किए गए हैं जो इमोशन ऑफ लॉस का इजहार करते हैं? आंसर है वर्ड्स लाइक वॉर, सफरिंग, एज, wrath, despair, shame, and images of cannons booming convey the emotion of loss in the poem. Third question है in the poem In Spite of War, there are several examples of personification. Identify two examples of personification. Explain what is being personified and how in each example. First example देखें courage, the morning glory saith. तो उसमें explanation है here courage is personified as if the morning glory plants is speaking and encouraging courage. Second example में the clouds are romping with the sea. This explanation है the clouds are personified as if they are playing or frolicking with the sea. Question 4 I make a list of words that tell you about the tone of poem in spite of war and explain how those words tell us what the tone is. तो आपने उन अल्फाजों की लिस्ट बनानी है जो इस पोएम में इस्तेमाल किए गए हैं और वो पोएम की टोन को जाहिर करते हैं या बताते हैं. Use examples from the poem to back up your reasoning. तो words indicating a hopeful and positive tone. तो ये वो जो लफ्ज़ हैं laughs and sings हैं blooming है tripping rejoice ये सारे जो अल्फाज हैं पॉजिटिव टोन के बारे में बता रहे हैं जबकि these words suggest an optimistic outlook despite the presence of war and suffering. For example, the lines something within me laughs and sings, and that life is not but ecstasy convey a tone of resilience and optimism. Last question here, what is the theme of poem in spite of war? The theme of poem is resilience and finding beauty, joy, and hope even in the mid of war and suffering. It emphasizes the idea that life continues to flourish and that there is still goodness and beauty in the world despite the presence of conflict. Next question here, choose the correct option. According to Angela Morgan, despite death and destruction of war, life springs in the form of natural beauty. Second here, when pansies lift their eyes to mine, in this line, the poet has used the poetic device of personification. थर्ड की तरफ पढ़ते हैं. The words boom, roar, murmureth, and whispering breathe is the example of dash onomatopoeia. ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है. Dear students, याद रखें onomatopoeia जो है एक literary device है where words imitate the natural sounds. इसमें जो अल्फाज जो हैं वो नेचुरल साउंड्स की कॉपी करते हैं associated with the object and action. यानी जिस वो ऑब्जेक्ट की आवाज होगी. जैसे बूम जो है ये इमिटेट कर रही है कॉपी करी डीप रेजोनेंट साउंड ऑफ एक्सप्लोजन जैसे कैनन की आवाज से बूम है. रोर जो है ये कॉपी करती है उस आवाज की जैसे लाइन हो गया या टाइगर की आवाज को. फोर है अकॉर्डिंग टू द पोएट एंजुला मॉर्गन life is the name of option D is the right ecstasy and elation. Fifth, the tone of the poem is option is A is the right optimistic. Vocabulary की तरफ बढ़ते हैं. Read the poem in spite of war and make a list of words that evoke positive emotions and other that evoke negative emotion. यानी आपने इस पोएम को पढ़ना है और उसमें आपने उन अल्फाजों की लिस्ट बनानी है जिससे आपको पॉजिटिव इमोशन मिलते हैं यानी मुस्बत जज्बात और दूसरे ऐसे अल्फाज जो आपके मनफी
जज्बात उभारते हैं। ओके, पॉजिटिव इमोशन के जो अल्फाज हैं वो है इस पोइम में जो इस्तेमाल किए हैं, लैफ, सिंग्स, ब्लूमिंग, ट्रिपिंग, करेज एक्सेट्रा। और नेगेटिव इमोशन के वॉर, सफरिंग, हेट, रॉथ, नाइटमेयर एक्सेट्रा। ये ऐसे अल्फाज हैं जो इस पोइम में इस्तेमाल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज द राइटिंग। ये है, राइट द समरी ऑफ पोएम इन स्पाइट ऑफ वॉर इन योर ओन वर्ड्स। तो आपने इस पोएम की समरी लिखनी है। इन स्पाइट ऑफ वॉर बाय एंजेला मॉर्गन इज अ पोएम about finding happiness even when things are tough. It talks about how even during war and sadness there are still good things happening. Flowers bloom, nature is beautiful, and there's a hope all around. The poem tells us that we can find joy and courage even in difficult times. It shows us that nature can make us feel better, like when flowers encourage us to be brave and clouds play happily with the sea. The poem wants us to know that life is full of beauty and happiness, and we can always find reasons to be hopeful no matter what challenges we face. It encourages us to stay strong, positive, even when things seems hard. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराफ्रेज द फॉलोइंग स्टेंजा। तो इस स्टेंजा को ऑलरेडी हम पहले पैराफ्रेज कर चुके हैं। चले बढ़ते हैं ग्रामर की तरफ। एडजेक्टिव फ्रेज। डी स्टूडेंट्स याद रखें, एडजेक्टिव जो है वो हमेशा नाउन की मीनिंग में इजाफा करता है। और एडजेक्टिव जो फ्रेज है, फ्रेज हमेशा किसी भी सेंटेंस का एक हिस्सा हो सकती है। और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं विच गिव्स इनकम्प्लीट सेंस। बट मगर यहाँ जो एडजेक्टिव फ्रेज है, इसका जो फंक्शन होगा वो एडजेक्टिव का ही होगा। चलिए इसको मजीद समझ लेते हैं टेक्स्ट की मदद से। An adjective phrase or adjectival phrase is a phrase that tells us something about the noun it is modifying. तो ये ऐसी फ्रेज है जो नाउन के मीनिंग में यानी उसके बारे में कुछ चीज बताती है। It had a principal word in an adjective phrase will be adjective। तो इसमें जो मेन जो उसका प्रिंसिपल वर्ड होगा वो हमेशा एडजेक्टिव ही होगा। याद रखें, एडजेक्टिव नाउन की मीनिंग में इजाफा करेगा। लाइक ए नॉर्मल एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव फ्रेज कैन बी यूज बिफोर द नाउन। इसको एडजेक्टिव फ्रेज को हम नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं। इट इज मॉडिफाइंग और आफ्टर द नाउन इट इज मॉडिफाइड। चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, शी हैड एक्सट्रीमली कैचिंग आइज। तो आइज इज द नाउन, एक्सट्रीमली कैचिंग जो है ये फ्रेज है। ऐसा एक अल्फाज से ज्यादा है तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है जो किसके मीनिंग में इजाफा कर रही है, आई यानी नाउन के मीनिंग में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एडजेक्टिव फ्रेज की। जैसे द डॉग कवर्ड इन मड इज माइन। अब ये देखिए, जो डॉग है विच इज द नाउन, अब कवर्ड इन मड, तो कवर्ड इन मड जो है वो इसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, यानी डॉग नाउन के मीनिंग इज माइन। ठीक है, तो ये इसकी एक एग्जाम्पल हो जाएगी। अ, मजीद एग्जाम्पल्स दी गई हैं तो आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव क्लास। स्टूडेंट्स याद रख लें, क्लास जो है जैसे यहाँ लिखा हो, इट विल कंटेन अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। याद रखें फ्रेज में सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं होगा मगर क्लास में सब्जेक्ट एंड वर्ब मौजूद होगा। नेक्स्ट, इट विल बिगिन विद द रिलेटिव प्रोनाउन। अगर आपको एडजेक्टिव क्लास रिकग्नाइज करना है तो इसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब होगा। दूसरा, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन से ये शुरू होगी, जैसे हु, whom, whose, that, or which, और relative adverb when, where and why से ये एडजेक्टिव क्लास शुरू होगी। फाइनली इट विल फंक्शन एज एन एडजेक्टिव। तो जैसे एडजेक्टिव फ्रेज थी, एडजेक्टिव क्लास का भी जो फंक्शन है एज एन एडजेक्टिव है।
यानी ये हमेशा नाउन की मीनिंग में इजाफा करेगी। आंसर द क्वेश्चंस व्हाट काइंड, यानी ये हमेशा आंसर करेगी व्हाट काइंड, किस किस्म, हाउ मैनी एंड विच वन। चले बढ़ते हैं, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। द रैट दैट Tyre saw yesterday was in the kitchen earlier। अब देखें, तो फर्स्ट है, ये जैसे उन्होंने कहा था दैट से शुरू होगा, यानी रिलेटिव प्रोनाउन से, और इसमें हम देखते हैं सब्जेक्ट भी मौजूद है और वर्ब भी, यानी इसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों मौजूद है। मगर ये काम जो कर रहा है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एंड इट इज मॉडिफाइंग व्हाट, विच इज द रैट, यानी द इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन बीइंग मॉडिफाइड। इसकी मजीद एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी आर रीडिंग द बुक दैट आई लाइक द बेस्ट। तो इसमें अगर हम देखें, ये जो बोल्ड एडजेक्टिव क्लास है, एक तो ये अगेन जो है रिलेटिव प्रोनाउन के साथ शुरू हुआ है, विच इज द दैट, और इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। दैट आई लाइक द बेस्ट इज एन एडजेक्टिव क्लास, इट कंटेन्स द सब्जेक्ट एंड द वर्ब लाइक, जैसे एक्सप्लेन कर दिया गया है। द क्लास मॉडिफाइज द नाउन, तो ये किस चीज को मॉडिफाई कर रहे हैं, विच इज द नाउन, वो क्या है, द बुक। वी आर रीडिंग द बुक, तो वो कौन सी बुक थी, दैट आई लाइक द बेस्ट। चले बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। मजीद अंडरलाइन द एडजेक्टिव फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपने इन सेंटेंसेस को पढ़ना है और उसका एडजेक्टिव फ्रेजेस जो हैं उसको अंडरलाइन करना है। जैसे, तो फर्स्ट है, हैव यू एवर सीन अ एलिफेंट विद अ वाइट स्किन। तो इसमें जो है विद द वाइट स्किन जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज है। नेक्स्ट है, ही वॉज वेयरिंग अ क्राउन मेड ऑफ गोल्ड। तो मेड ऑफ गोल्ड जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है। थ्री है, देयर आई मेट अ गर्ल विद ब्लू आईज। तो विद द ब्लू आईज जो है एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि गर्ल के मीनिंग में, गर्ल के मीनिंग में इजाफा कर रही है। फोर है, वाइल्ड बीस्ट इन स्मॉल केजेस और अ सोरी साइट। तो इसमें वाइल्ड बीस्ट जो है ये नाउन है, इन द स्मॉल केजेस, तो ये जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है, वाइल्ड बीस्ट के मीनिंग में इजाफा कर रही है। फिफ्थ है, मैन विद अ लॉन्ग बियर्ड केम टू सी मी। तो वो कैसा शख्स था, विद अ लॉन्ग बियर्ड, तो ये जो है एडजेक्टिव फ्रेज है और इसके मीनिंग में इजाफा कर रही है अपने नाउन के, विच इज अ मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिप्लेस द एडजेक्टिव। आपने क्या करना है, इन सेंटेंसेस में एडजेक्टिव को रिप्लेस करना है इन बोल्ड, जैसे ये बोल्ड में है, इन बोल्ड लेटर्स बाय एन एडजेक्टिव फ्रेज, और इसकी जगह आपने एडजेक्टिव फ्रेज लगाना है ऑफ द सेम मीनिंग। पहला आपके लिए कर देगी, जैसे द किंग वोर अ गोल्डन क्राउन। अब अपने एडजेक्टिव को आपने एडजेक्टिव फ्रेज के साथ तब्दील करना है, जैसे द किंग वोर अ गोल्डन क्राउन, तो द किंग वोर अ क्राउन मेड ऑफ गोल्ड। तो अब मेड ऑफ गोल्ड जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है जो क्राउन के मीनिंग में इजाफा कर रही है। तो इसी तरीके से हम मजीद देख लेते हैं। सेकंड है, इट इज अ वाइट एलिफेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ एलिफेंट विद अ वाइट स्किन। सेकंड देख लेते हैं, इट इज अ वाइट एलिफेंट, तो वाइट एडजेक्टिव है, इसको तब्दील करना है एडजेक्टिव फ्रेज के साथ। इट इज एन एलिफेंट विद अ वाइट स्किन। अ वाइट स्किन जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज है। ही लिव्ड इन अ स्टोन हाउस। सो ही लिव्ड इन अ हाउस मेड ऑफ स्टोन। फोर है, देयर वाज एन earthen pot on the table। तो आंसर है, देयर वाज अ pot made of earthenware or pot। She wore a diamond necklace। She wore a necklace adorned with diamonds। सिक्स है, that was a brave act। brave की जगह हमने लगा दिया
That was an act of bravery. C here, underline the adjective clause in the following sentences and circle the word it modifies. आपने क्या करना है? Adjective clause को आपने अंडरलाइन करना है और फिर आपने सर्कल करना है उस अल्फाज को जिसको ये मॉडिफाई कर रही है। तो फर्स्ट वन है आई लाइक अ लीडर हु लिसन्स टू हिज पीपल। तो इसमें हु लिसन्स टू हिज पीपल जो है, जो ये एडजेक्टिव क्लास है और और ये मॉडिफाई कर रही है लीडर को। नेक्स्ट है द डॉग विच आई लव डियरली वाज हिट बाय अ ट्रक लास्ट नाइट। तो इसमें विच आई लव डियरली ये एडजेक्टिव क्लास है और ये डॉग की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। नेक्स्ट है रशीद इज अ पर्सन हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल। तो इसमें हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल जो है ये एडजेक्टिव क्लॉज है और ये पर्सन के मीनिंग में इजाफा कर रही है। फोर है गजाला इज वन फॉर whom यू आर लुकिंग। तो इसमें फॉर whom यू आर लुकिंग ये जो है एडजेक्टिव क्लॉज है और इट मॉडिफाइज द वन। फिफ्थ है द शर्ट दैट यू bought me doesn't fit well। तो that you bought me ये जो है ये एडजेक्टिव क्लॉज है और ये शर्ट के मीनिंग को मॉडिफाई कर रही है, यानी नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रही है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है डी कंबाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स sentence containing an adjective clause। The first one has been done। तो आपने इन सेंटेंसेस को, दो सेंटेंसेस को कंबाइन करना है, सिंपल सेंटेंसेस को, ताकि वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाए और उसमें एडजेक्टिव क्लास का भी आपने इजाफा करना है या लगाना है, और यानी उसमें ज़रूर एडजेक्टिव क्लास मौजूद हो। चलिए बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। यू आर लुकिंग अपसेट, कैन यू टेल मी द रीज़न। तो इसमें है कैन यू टेल मी द रीज़न why you are looking upset। Okay, next है he had several plans for making money quickly, all of them have failed। तो अ, इसको कंबाइन करते हैं he had several plans all of which have failed for making money quickly। फोर है this is the village I was born here, this is the village where I was born। फिफ्थ है you put the keys somewhere, show me the place। कंबाइन करते हैं show me the place where you put the keys।